welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is MS PowerPoint and Introduction. In this chapter, we will learn starting MS PowerPoint, exploring the user interface, exploring the ribbon, minimizing and expanding the ribbon, creating a new blank presentation, entering text, copying and moving text, using undo and redo, adding and deleting slides, changing a slide's layout, moving, resizing and rotating placeholders, saving a presentation, closing a presentation and exiting PowerPoint, opening an existing presentation, formatting a presentation, formatting characters, formatting paragraphs, inserting images, viewing a presentation in different ways. तो इन शॉर्ट इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पे किस तरीके की प्रेजेंटेशन बनाते हैं, किस तरीके से अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग होती है, आज हम वो जानने वाले हैं. Microsoft PowerPoint 2010 is a presentation program that offers various effects, themes, layouts and formatting options that can be used to quickly and efficiently create and share dynamic presentations with your viewers. This handout provides an overview of the PowerPoint 2010 user interface and covers how to perform basic tasks such as creating a new presentation, formatting text, inserting images and printing etc. तो Microsoft PowerPoint 2010 बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी एक टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वीडियोस डालते हैं, पिक्चर्स डालते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, अलग अलग उसको कैलीग्राफी देते हैं. बेसिकली जो आपके व्यूअर्स हैं जिन तक भी आप किसी टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो आपको बहुत ही इफेक्टिवली और अच्छी अट्रैक्टिव वे में आपको प्रेजेंटेशन बना के देता है. स्टार्टिंग MS PowerPoint. To start PowerPoint 2010, follow the given steps. Step 1, click the Start button. Step 2, click on All Programs. Step 3, click on Microsoft Office. Step 4, click on Microsoft PowerPoint 2010. The MS PowerPoint window will be opened as the one shown below. तो आपको अगर सबसे पहले MS PowerPoint को ओपन करना है तो आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे. ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 पे क्लिक करना है. आपके सामने एक MS पावरपॉइंट का जो पूरा विंडो है वो ओपन हो जाएगा. Given below are some elements of PowerPoint window with their uses. Elements, description. Title bar displays the name of the presentation and the program. Minimize, restore, down, maximize and close buttons. Use to control the program window. Use the minimize button to hide the window. Use the restore down, maximize button to adjust the size of the window. Use the close button to close the presentation or to exit PowerPoint. Quick Access Toolbar contains frequently used commands that are independent of the tab displayed on the ribbon. Ribbon contains all the commands related to managing presentations and working with presentation content. Overview pane appears on the left side of the program window and has two tabs. Clicking the Slides tab displays small thumbnails of all the slides in the active presentation. Clicking the Outline tab shows all the text on the slides displayed as an outline. Slide pane shows the current slide as it will appear in the presentation. Notes pane appears below the slide pane and provides a place for entering notes about the current slide, example, speaker notes. Status bar displays information about the current presentation, example, slide number, theme name, and provides access to certain program functions. View shortcuts toolbar used to display the presentation in a variety of views, each suited to a specific purpose. Zoom level button and zoom slider
यूज टू चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो आपके जो MS पावर पॉइंट विंडो होती है उसमें आपकी कुछ चीजें प्रेजेंट होती है ताकि आपका पावर पॉइंट और भी ज्यादा आप आसानी से एक्सेस कर पाए। सबसे पहले आपका टाइटल बार होता है, इसमें आपकी प्रेजेंटेशन का नाम होता है। फिर आपका मिनिमाइज, रीस्टोर, डाउन, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स होते हैं। ये आपका जब आपको आपकी विंडो को हाइड करना होता है तो आप मिनिमाइज बटन का यूज करते हैं। उसके बाद आपका जो रीस्टोर, डाउन और मैक्सिमाइज बटन होता है वो आपकी विंडो का साइज एडजस्ट करने के लिए होता है। और जो क्लोज बटन होता है जब आपको आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी होती है और आपको उस विंडो से एग्जिट करना होता है तो आपका क्लोज बटन यूज होता है। देन कम्स योर क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपके वो कॉमनली यूज्ड कमांड्स होते हैं जो एक प्रेजेंटेशन बनाते हुए आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए होते हैं यूज करने के लिए। देन कम्स योर रिबन। रिबन में भी आपके वो कॉमन कमांड्स होते हैं जो आपकी अलग अलग फीचर्स जो आपके प्रेजेंटेशन में होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज करे जाते हैं। देन कम्स योर ओवरव्यू पेन। जो ओवरव्यू पेन होता है वो आपके प्रेजेंटेशन के लेफ्ट साइड पे होता है। हर एक प्रेजेंटेशन का बेसिकली जो फ्रंट सीन होता है किस तरीके का वो दिखाई देगा, आपकी हर स्लाइड कैसी दिखाई देगी वो आपको वो डिस्प्ले करता है। देन कम्स योर स्लाइड पेन। जितनी भी आपकी करंट प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड चल रही होती है उस स्लाइड पेन में आपको उस करंट स्लाइड को का डिस्प्ले होता है। स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपकी करंट प्रेजेंटेशन की अलग अलग स्लाइड नंबर क्या है, क्या उसमें डिटेल्स है, स्लाइड का नाम क्या है, थीम का नाम क्या है, बेसिकली आपकी करंट स्लाइड की आपको अलग अलग चीजें बताता है। व्यू शॉर्टकट टूल बार जो है ये आपकी अलग अलग प्रेजेंटेशन की वैरायटी ऑफ व्यूज जो आपकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किस तरीके की चीजें आपकी स्लाइड के लिए अच्छी रहेंगी वो आपको ये बताता है। जूम लेवल बटन एंड जूम स्लाइडर। ये आपकी स्लाइड का जो मैग्निफिकेशन होता है, कितना जूम्ड इन रहेगा, कितना जूम आउट रहेगा, बेसिकली कितना आपको दिखाई देगा, कितना मैग्निफाइड आपका व्यू रहेगा प्रेजेंटेशन का, वो यहां से कंट्रोल होता है। एक्सप्लोरिंग द रिबन। द रिबन इज लोकेटेड below the title bar. Across the top of the ribbon is a set of task-specific tabs. Some tabs, known as contextual tabs, appear only when you create or select certain types of objects, example pictures, tables, charts. Let us understand the utility of various tabs present on the ribbon. Tab, description, file. Displays the backstage view which contains commands related to managing files and customizing the program. The file tab replaces the Microsoft Office button and file menu used in earlier releases of Microsoft Office PowerPoint. Home contains commands related to creating slide content. The Home tab is active by default. Insert contains commands related to all the items you can insert into a presentation. Design contains commands related to the appearance of a presentation. Transitions contains commands related to the transition of slides in a presentation. Animations contains commands related to slide animation. Slideshow contains commands related to displaying a presentation. Review contains commands related to editorial tasks such as checking spelling and adding comments. View contains commands related to changing the view or the display of a presentation. आपका जो रिबन होता है वो आपके टाइटल बार के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें आपके अलग अलग टास्क स्पेसिफिक टैब्स होते हैं। कुछ आपके ऐसे टैब्स होते हैं जो आपको हर किस्म की विंडो में यूजुअली दिखाई देंगे, बट कुछ आपके रिबन में ऐसे भी टैब्स होते हैं जो कि कॉन्टेक्चुअल टैब्स होते हैं और आपको तभी दिखाई देंगे जब आप स्पेसिफिक टाइप की चीजें क्रिएट करते हैं, सर्टेन टाइप्स की, जैसे कि आपने कोई चार्ट बनाया है, टेबल बनाया है, पिक्चर्स बनाए हैं, तो ही आपको ये कॉन्टेक्चुअल टैब्स उस रिबन में दिखाई देंगे। जैसे कि फाइल टैब। फाइल टैब जो होता है ये आपके बैक स्टेज व्यू में डिस्प्ले होता है, जिसमें आपकी अलग अलग कमांड्स होती हैं, जैसे कि मैनेजिंग फाइल्स, कस्टमाइजिंग द प्रोग्राम। इसके अलावा आपके जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होते हैं, फाइल मेन्यू होता है जो आपने पहले की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज किया होगा पॉइंट में, वो सारी चीजें होती हैं। फिर आपका होम टैब आता है। होम टैब में आपके वो कमांड्स होते हैं जो आपकी स्लाइड को क्रिएट करने के लिए यूज में आते हैं। फिर आपका इंसर्ट आता है। इंसर्ट में आपको प्रेजेंटेशन में क्या क्या आइटम्स को इंसर्ट करना है, या आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, टेबल हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका इंसर्ट टैब से होता है। देन कम्स योर डिजाइन। आपकी प्रेजेंटेशन का अपीयरेंस, किस तरीके की आपकी प्रेजेंटेशन दिखेगी, आउटलुक कैसा होगा, वो आपका डिजाइन टैब से होता है।
फिर आपका ट्रांजिशंस आता है, आपकी स्लाइड्स जब चेंज होती हैं, स्विच होती हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब आप जाते हैं तो किस तरीके के इफेक्ट आएंगे, वो आपका ट्रांजिशन टैब से होता है। एनिमेशंस, आपकी अगर एनिमेशंस आपने अपनी प्रेजेंटेशन में डाल रखी है तो वो किस तरीके से इंसर्ट होगी, किस तरीके की वो दिखेगी, कौन सी स्लाइड में आएगी। स्लाइड शो होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन का डिस्प्ले कैसे होगा। कंटिन्यूसली जैसे ही आप स्लाइड शो ऑन कर देते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन एक पैटर्न में चलती रहती है। रिव्यू जो होता है, आपकी अलग अलग कंटेंट्स जो आपने लिखे होते हैं, जैसे आपकी स्पेलिंग हो गई, अलग अलग टाइप के आपके आउटलुक हो गए, आपकी स्पेलिंग कहीं पे गलत हो गई, आपको कुछ एडिटिंग करनी है, तो वो आपके रिव्यू वाले पार्ट से होता है। देन कम्स योर व्यू में आपकी प्रेजेंटेशन का बेसिकली डिस्प्ले होता है। इस टाइम तक आप अपने प्रेजेंटेशन में एनिमेशन डाल चुके होते हैं, हर टाइप की जो आपकी सेटिंग होती है, सारी इंसर्शन आप कर चुके होते हैं, रिव्यू हो चुका होता है। अब बस आपकी जो डिस्प्ले होती है प्रेजेंटेशन की, वो आपको दिखानी होती है, तो वो आपके व्यू से होती है। Minimizing and expanding the ribbon. You can minimize the ribbon to make more space available on the screen. When the ribbon is minimized, only the tab names are visible. To minimize the ribbon, click the Minimize the Ribbon button located at the right end of the ribbon or press Ctrl plus F1. To expand the ribbon, click the Expand the Ribbon button located at the right end of the ribbon or press Ctrl plus F1। तो आपका जो मिनिमाइजिंग या एक्सपैंडिंग द रिबन होता है, बेसिकली जैसे ही आप मिनिमाइज कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ टैब के नेम्स विजिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके एक्सपैंडेड वर्जन में नहीं होता है। अगर आपको रिबन को मिनिमाइज करना है तो या तो आप मिनिमाइज द रिबन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जो आपकी राइट हैंड साइड पे आपके रिबन के एंड में लोकेटेड होता है, या फिर Ctrl plus F1 भी दबाएंगे तो आपके रिबन्स मिनिमाइज हो जाएंगे। अब आपको जो मिनिमाइज रिबन है उसको मैक्सिमाइज करना है तो सिंपली या तो आप एक्सपैंड द रिबन बटन पर क्लिक करेंगे, जो आपके रिबन के एंड साइड पे राइट हैंड साइड पे लोकेटेड होगा, या फिर Ctrl plus F1 दबाएंगे तो वापस से वो एक्सपैंड हो जाएगा। Creating a new blank presentation. To create a new presentation, click File, New, Blank Presentation, Create. अब अगर आपको नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद आप न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। Entering text. A new blank presentation includes one slide which is based on the title slide layout. The slide contains two placeholders, one formatted for a title and the other formatted for a subtitle. The arrangement of placeholders on a slide is called a layout. फिर आपका आता है जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन पे टेक्स्ट लिखना होता है। आपकी जो टाइटल स्लाइड लेआउट होता है उसमें बेसिकली आपकी दो प्लेस होल्डर्स होते हैं, एक आपकी टाइटल के लिए होती है जगह, एक प्लेस होल्डर आपकी टाइटल के लिए होती है और दूसरी आपकी सब टाइटल के लिए होती है। तो इस पूरा जो आपका ये डिजाइन होता है प्रेजेंटेशन का, जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हैं, वो आपका लेआउट होता है। To enter text, step 1, in the slide pane, click inside the placeholder in which you want to add text. Step 2, type the desired text. Step 3, click anywhere outside the placeholder to deselect it. अब अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले स्लाइड पेन में आपको प्लेस होल्डर को बीच में क्लिक करना है, जहां पर भी आप कुछ लिखना चाहते हैं वहां पे आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आप वो लिखना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लेस होल्डर को बाहर कहीं पर भी सिलेक्ट करना है, कहीं पे भी क्लिक कर देना है उस टेक्स्ट के बाहर, उसको डीसिलेक्ट करने के लिए। Know it. The prompt text appears in the placeholder until you type your text. If you do not enter any text, the placeholder text remains on the screen, but it is not displayed when you play the slide show or print it. तो जैसे ही आप प्लेस होल्डर को टेक्स्ट लिखने के लिए जहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे टेक्स्ट का प्रॉम्प्ट तब तक रहेगा जब तक आपने अपना टेक्स्ट लिखना शुरू नहीं करा है। जैसे ही आप लिखना शुरू कर देंगे वो प्रॉम्प्ट आपका हट जाएगा। Copying and moving text. To copy text, step 1, select the text that you want to copy. Step 2, on the home tab in the clipboard group, click the copy button or press Ctrl plus C. Step 3, position the insertion point where you want to paste the text. Step 4, on the home tab in the clipboard group, click the paste button or press Ctrl plus V. आपको अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो सबसे पहले तो आप उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो होम टैब है क्लिपबोर्ड ग्रुप में,
उसमें जाके आपको कॉपी बटन पे क्लिक करना है, या फिर सिंपली आप Ctrl+C को भी प्रेस कर सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज करने के बाद आपको जो इंसर्शन पॉइंट है उसको आपको पॉइंट करना है उस जगह पे जहां पे आपको ये कॉपीड टेक्स्ट को पेस्ट करना है। फिर आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो आपके होम टैब में है वहां पर आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करना है, या फिर आप Ctrl+V भी दबाएंगे तो आपका जो कॉपीड टेक्स्ट है वो नई लोकेशन पे प्लेस हो जाएगा। To move text, step 1, select the text that you want to move. Step 2, on the home tab in the clipboard group, click the cut button or press Ctrl+X. Step 3, position the insertion point where you want to paste the text. Step 4, on the home tab in the clipboard group, click the paste button or प्रेस Ctrl+V। अब अगर आपको कोई टेक्स्ट पूरा का पूरा उठा के कहीं पर मूव कर देना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे जिसको आप मूव करना चाहते हैं। उसके बाद आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो होम टैब है वहां पर आपको या तो कट बटन पे क्लिक करना है या फिर आपको Ctrl+X प्रेस करना है। दोनों में से एक चीज करने के बाद आपका जो भी इंसर्शन पॉइंट है उसको आपको वहां पर लेकर जाना है जहां पे आपको कट किया हुआ टेक्स्ट को मूव करना है। उसके बाद आपका जो क्लिपबोर्ड ग्रुप में होम टैब है वहां पर जाके या तो आप पेस्ट बटन दबा देंगे या फिर Ctrl+V, तो आपका जो पूरा का पूरा टेक्स्ट आपने कट किया है वो नई लोकेशन पे मूव हो जाएगा। यूजिंग undo and redo. The undo command allows you to reverse the results of the previous command or action. Once the undo command is used, the redo command becomes available. The redo command allows you to restore the results of the command or action you reversed with the undo command. तो आपके जो undo और redo commands होते हैं बेसिकली जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और आपको वो एक्शन को हटा देना है, रिवर्स कर देना है, तब आप यूज करते हैं undo। और redo ऑप्शन जो होता है वो आपका तब होता ही तभी यूज है जब आपने undo ऑप्शन को कमांड दे रखा हो। अगर आपने undo नहीं करा है तो आप redo भी नहीं कर पाएंगे। तो रीडू ऑप्शन जो होता है वो आपके अनडू कमांड को वापस से रिवर्स करके आपके सामने प्रोग्राम में डिस्प्ले कर देता है। To undo the previous command or action, click the undo button on the quick access toolbar or press Ctrl+Z. To redo the undone command or action, click the redo button on the quick access toolbar or press Ctrl+Y. तो अगर आपको किसी भी प्रीवियस कमांड या एक्शन को अनडू करना है तो उसके लिए या तो आप क्विक एक्सेस टूल बार पे अनडू बटन को प्रेस कर दीजिए या फिर Ctrl+C, इन दोनों में से कोई भी एक चीज, Ctrl+Z। अगर आपको उस अनडू कमांड को वापस से रीडू करना है, वापस से वो एक्शन लेकर आना है, तो उसके लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके या तो रीडू बटन पे क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+Y, तो आपका एक्शन रीडू हो जाएगा। Adding and deleting slides. By default, a slide added after the title slide layout has the title and content layout. Thereafter, each added slide has the layout of the preceding slide. If you want to add a slide with a different layout, you can select the desired layout from the new slide gallery. If a slide is no longer needed, you can easily delete it from the presentation. फिर आपका आता है स्लाइड्स को ऐड करना और उसको डिलीट करना। तो बाय डिफॉल्ट ही जो आपका टाइटल स्लाइड लेआउट होता है उसमें आपका एक तो टाइटल और एक कंटेंट लेआउट होता है। इसके अलावा आपकी ईच स्लाइड जो होती है उसका लेआउट आपकी प्रीसीडिंग स्लाइड जैसा ही होता है। अगर आपको किसी भी स्लाइड का जो आउटलुक है वो आपको चेंज करना है तो आप सिंपली न्यू स्लाइड गैलरी में से अपना डिजायर्ड आउटलुक को चूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी स्लाइड का जो भी आपका चीज है आपको नहीं चाहिए, आपको सपोज एक स्लाइड जो आपने ऐड कर रखी है, तो सिंपली आप उसको प्रेजेंटेशन में से डिलीट कर दीजिए, वो स्लाइड हट जाएगी। To add a slide without selecting the layout first, on the home tab in the slides group, click the new slide button. अगर आपको बिना लेआउट को चूज करे हुए आपको एक स्लाइड को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप सिंपली होम टैब जो कि आपका स्लाइड ग्रुप में है वहां पर जाकर आपको न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक कर देना है। To add a slide with a specific layout, on the home tab in the slides group, click the arrow on the new slide button and select the desired layout from the gallery. अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेआउट के साथ स्लाइड चाहिए तो उसके लिए आपके स्लाइड्स ग्रुप में जो होम टैब है वहां पर आपको न्यू स्लाइड बटन का जो एरो है उस पर क्लिक करना है और उसमें से आपको जिस भी तरीके का लेआउट आपकी स्लाइड का चाहिए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। To delete a slide, step 1, in the overview pane on the slides tab, select the slide that you want to delete. Step 2,
प्रेस द डिलीट की। अब अगर आपको किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो सिंपली आपके जो स्लाइड्स टैब पे ओवरव्यू पेन है वहां पर जाकर आपको अपनी स्लाइड पे सिलेक्शन करनी है, सिलेक्ट करना है स्लाइड को और उसके बाद आपको डिलीट की को प्रेस कर देना है, आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। नो इट, यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक द स्लाइड ऑन द स्लाइड्स टैब ऑफ द ओवरव्यू पेन एंड सिलेक्ट डिलीट स्लाइड फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। अगर आपको ये सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है तो सिंपली आपका जो ओवरव्यू पेन होता है उसमें स्लाइड्स टैब में जाके आप उस स्लाइड पे राइट क्लिक करिए, शॉर्टकट मेन्यू से डिलीट को प्रेस करिए, आपकी जितनी भी स्लाइड्स है वो डिलीट हो जाएंगी। Changing a slides layout. To change a slides layout, step 1. In the slide pane, display the slide that you want to apply a new layout to. Step 2. On the home tab in the slides group, click the layout button and select the desired layout from the gallery. अब अगर आपके किसी भी स्लाइड पे आपको अलग टाइप का लेआउट सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले तो आपके स्लाइड पेन में जाके जहां पर भी आपका स्लाइड डिस्प्ले हो रहा है, जिस भी स्लाइड पे आपको अलग लेआउट चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो स्लाइड्स ग्रुप में होम टैब है उसमें जाके आपको लेआउट बटन पे क्लिक करना है और उसमें से जो आपकी लेआउट गैलरी है उसमें से आपको जैसा भी टाइप का लेआउट चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मूविंग, रीसाइजिंग एंड रोटेटिंग प्लेस होल्डर्स. The size and position of the placeholders on a slide are dictated by the slide's design. You can move, resize and rotate placeholders to suit your needs. When you click inside a placeholder, the placeholder is surrounded by a dashed border. You can then enter new text or edit existing text. Click on the dashed border changes it to a solid border. You can then manipulate the placeholder as a unit. अब अगर आपका जो प्लेस होल्डर है उसको आपको रीसाइज करना है, मूव करना है या फिर रोटेट करना है। बेसिकली आपके जो प्लेस होल्डर्स होते हैं वो आपकी स्लाइड को डायरेक्टली डिक्टेट करते हैं आपकी स्लाइड्स डिजाइन से। तो आपको अगर कोई भी प्लेस होल्डर को मूव करना है, रीसाइज करना है या फिर रोटेट करना है तो जब भी आप प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करते हैं तो आपका प्लेस होल्डर के आसपास एक डैश्ड बॉर्डर बन जाता है। इसके अंदर उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही आप डैश्ड बॉर्डर आपका, जैसे ही आप कहीं और क्लिकिंग करते हैं, क्लिकिंग ऑन द डैश बॉर्डर, आपका जितना भी बॉर्डर होता है वो एक हार्ड बॉर्डर, सॉलिड बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप पूरे के पूरे प्लेस होल्डर को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। To move a placeholder, step 1. In the slide pane, position the mouse pointer over the placeholder's border. The pointer changes to a 4-headed arrow. Step 2. Drag the placeholder to the desired location. Step 3. Click anywhere outside the placeholder to deselect it. अब अगर आपको किसी भी placeholder को मूव करना है, कहीं पे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपके स्लाइड पेन में जाके आपको अपने माउस पॉइंटर को वहां पर पोजीशन करना है प्लेस होल्डर के बॉर्डर पे। आपका जो पॉइंटर है वो 4-हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये 4-हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा उसके बाद आपको प्लेसर को, जो भी आपका प्लेस होल्डर है, उसको ड्रैग करते हुए आपको नई लोकेशन पर लेकर आना है जहां पर आपको उसको मूव करना है। इसके बाद आप प्लेस होल्डर के बाहर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो वापस से deselect हो जाएगा। To resize a placeholder, step 1. In the slide pane, click the placeholder that you want to resize. Step 2. Drag any sizing handle, white circle or square, or desired to increase or decrease the size of the placeholder. Step 3. Click anywhere outside the placeholder to deselect it. अब अगर आपके प्लेस होल्डर को आपको रीसाइज करना है, या तो आप साइज इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप स्लाइड पेन में जाकर आपके प्लेस होल्डर को आपको क्लिक कर देना है जो आपको रीसाइज करना है। जैसे ही आप भी कर लेंगे, आप जो आपका साइज हैंडल है, व्हाइट सर्कल और स्क्वायर, आपको उसको ड्रैग करना है। जिस भी साइज का आपको चाहिए, डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, वो आप डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। प्लेस होल्डर के बाहर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन आपने कर रखी है प्लेस होल्डर पे वो डिसेलेक्ट हो जाएगी। To rotate a placeholder, step 1. In the slide pane, click the placeholder that you want to rotate. Step 2. Drag the rotate handle, green circle, in the desired direction. Step 3. Click anywhere outside the placeholder to deselect it. अब अगर आपको अपने प्लेस होल्डर को रोटेट करना है तो सबसे पहले तो स्लाइड पेन में जाकर आप प्लेस होल्डर को क्लिक करेंगे जो आप रोटेट करना चाहते हैं।
उसके बाद जो आपका एक ग्रीन सर्कल आएगा रोटेट हैंडल, उसको आपको ड्रैग करना है आपके डिजायर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही आप ये डिजायर्ड डायरेक्शन में कर लेंगे उसके बाद आपको प्लेस होल्डर के बाहर कहीं पर भी क्लिक करना है, वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, each present you create is temporary unless you save it as a file with a unique name or location। तो आपकी जो हर एक प्रेजेंटेशन होती है वो तब तक टेम्पररी होती है जब तक आप उसको कोई नाम और जगह नहीं दे देते। To save a presentation for the first time, step 1, click the save button on the quick access toolbar. The save as dialog box opens. Step 2, in the navigation pane, select a location to save the file or leave the default location. Step 3, in the file name box, enter a name for the file. Step 4, click the save button. अब अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन को पहली बार सेव कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें जाकर आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। जैसे ही अपीयर हो जाएगा आपका जो नेविगेशन पेन है वहां पर आपको एक लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहां पर आप फाइल को छोड़ना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास एक फाइल नेम बॉक्स आएगा, उसमें आपको आपकी फाइल का नाम लिख देना है और आखिरी में जाके आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, आपका प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगा। नो इट, बाय डिफॉल्ट फाइल्स आर सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। तो आपकी जो फाइल्स होती हैं बाय डिफॉल्ट, अगर कोई लोकेशन आपने नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में सेव रहती हैं। Closing a presentation and exiting PowerPoint. When you finish working on a presentation, you should close it and exit the PowerPoint program. If the presentation contains any unsaved changes, you will be prompted to save the presentation before closing it. To close a presentation, click the File tab on the ribbon and then click Close. To exit PowerPoint 2010, click the File tab on the ribbon and then click Exit, or क्लिक द क्लोज बटन लोकेटेड एट द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार। तो आपका जो प्रेजेंटेशन होता है पावर पॉइंट पे, जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन बन जाती है आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका काम होता है सेव करने के बाद प्रेजेंटेशन को एग्जिट करना पावर पॉइंट से। तो जब तक आपका जो भी प्रेजेंटेशन होता है अगर आप उसको बिना सेव करे क्लोज करते हैं तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट भी आ जाता है कि आपको आपका प्रेजेंटेशन सेव करना है या फिर नहीं करना है। एक प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए या तो आपका जो रिबन होता है उसमें आपके पास एक फाइल टैब होता है, वहां से जाकर भी आप क्लोज कर सकते हैं उसमें क्लोज दबाने के बाद, या फिर आपको पावर पॉइंट 2010 को अगर एग्जिट करना है तो उसके लिए आपको रिबन पे जो फाइल टैब है उस पर क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिट। या फिर जो आपके टाइटल बार के राइट हैंड साइड पे क्लोज बटन होता है उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप इससे एग्जिट हो जाएंगे। Opening an existing presentation. When you save a presentation, it is saved as a file on your computer. You can open the presentation at a later time to view it, modify it or print it. तो आपकी जो saved presentation होती है वो आपकी किसी भी लोकेशन पे जाके एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आपको अगर प्रेजेंटेशन दोबारा देखनी है, मॉडिफाई करना है, एडिट करना है तो आप उसको वहां पर जाकर ओपन अप करके देख सकते हैं। To open an existing presentation, step 1, click the File tab on the ribbon and then click Open. The Open dialog box opens. Step 2, locate and select the file you want to open. Step 3, click the Open button. अब अगर आपको किसी existing presentation को open करना है तो सबसे पहले आपका जो ribbon है उसमें आपको File tab पे जाना है और आपको क्लिक करना है Open पे। ओपन पे क्लिक करते ही एक ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, उस पर आपको लोकेट करना है और आपको उस पर क्लिक करना है जिस भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है, आपकी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। Formatting a presentation. PowerPoint 2010 includes a number of features that can be used to easily format a presentation. Formatting can enhance the appearance of the presentation and make it more visually appealing to your intended viewers. अब आता है आपका फॉर्मेटिंग का काम। आपकी प्रेजेंटेशन आपने बना दी है, पूरा आपने लेआउट दे दिया है, ब्लूप्रिंट आपने यहाँ पे खड़ा कर दिया है।
उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, एनहांस्ड और अपीलिंग कैसे लगे व्यूअर्स को, उसके लिए आप फॉर्मेटिंग फीचर का यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग में बेसिकली आप अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं, बॉर्डर्स को एनहांस कर देते हैं, बेसिकली इन शॉर्ट आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स. All text formatting is determined by the theme upon which the presentation is based as well as the selected slide layout. However, you can manually change the formatting of text to suit your needs. Character formatting enhances the appearance of text on a slide and includes font, font size, font color and font styles. Character formatting can be applied using the commands in the font group on the home tab of the ribbon. तो आपका जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स होता है बेसिकली वो आपकी प्रेजेंटेशन किस चीज़ के बारे में, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट को देंगे, आपके स्लाइड का लेआउट कैसा है। हाउएवर अगर आप खुद भी चाहते हैं मैनुअली कि आप अपने ही नीड्स के अकॉर्डिंग आपकी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करें, आपके स्लाइड के लेआउट को फॉर्मेट करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो सारा का सारा जो आपके टेक्स्ट का अपीयरेंस है वो आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। Changing the font. A font is defined as a group of characters sharing similar type of attributes. The default font used in a presentation is determined by the theme that is applied to the presentation. फिर आपका आता है font को change करना। जो आपका font होता है या आपका group of characters होता है जो एक ही जैसा दिखता है throughout by default, लेकिन आप चाहें तो अपने theme, अपने presentation, अपनी needs के according आपके font को change कर सकते हैं। To change the font, step 1, select the text that you want to format. Step 2, on the home tab in the font group, click the font arrow and select the desired font from the list. आपको अगर font को change करना है, सबसे पहले तो आप उस text को select कर लेंगे जिसका font आपको change करना है। Once you are done with this, उसके बाद आपका जो font group में home tab होता है उसमें आपका एक font arrow होता है, वो उस पर आप क्लिक करेंगे और वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या आपकी फॉन्ट का टाइप चाहिए। चेंजिंग द फॉन्ट साइज. Font size is measured in points. The larger the font size, the larger the text. The default font size of titles and other text in a presentation is determined by the theme that is applied to the presentation. फिर आपका font size होता है, ये basically points से measure करा जाता है। जितनी बड़ा आपका font size होता है उतनी ही बड़ी आपकी presentation की text भी होती है। आपका presentation किस type का है ये by default उसी तरीके से आपका selected रहता है। To change the font size, step 1, select the text that you want to format. Step 2, on the home tab in the font group, click the font size arrow and select the desired font size from the list. फिर आपका अगर आपके फॉन्ट का साइज अगर आपको चेंज करना है तो सबसे पहले तो आप उस सिलेक्ट को कर लेंगे उस टेक्स्ट को जिसका फॉन्ट साइज आपको चेंज करना है। उसके बाद होम टैब में जाके जो आपका फॉन्ट ग्रुप है उसमें आपको फॉन्ट साइज एरो पे क्लिक करना है और आपका जो भी डिजायर्ड साइज है उस लिस्ट में से आपको चूज कर लेना है। Changing the font style. Font style refers to the type of enhancements such as bold and italic. They can be used to emphasize keywords in a presentation. Name, description. Bold button makes the selected text bold. Italic button italicizes the selected text. Underline button draws a line under the selected text. Text shadow button adds a shadow to the selected text. Strike through button draws a line through the middle of the selected text. अगर आपको आपके फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, जिस तरीके आपका फॉन्ट दिख रहा है आपको उसको चेंज करना है, तो उसमें आपके अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। जैसे कि आपका एक बोल्ड बटन होता है, आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो बड़े बड़े बोल्ड लेटर में आ जाएगा। फिर आपका इटैलिक बटन होता है, आपके सारे के सारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को ये इटैलिसाइज कर देता है। अंडरलाइन बटन होता है, आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसके नीचे ये एक लाइन ले आएगा, अंडरलाइन कर देगा। टेक्स्ट शैडो बटन, आपके जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसके पास एक शैडो सी आ जाएगी। स्ट्राइक थ्रू बटन, या आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसके बीच में एक लाइन ले आता है। To change the font style, step 1, select the text that you want to format. Step 2, on the home tab in the font group,
क्लिक द बटन फॉर द डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल। तो अगर आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, सबसे पहले तो आप एज यूजुअल आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपके होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में जाके आपको क्लिक करना है डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल पे, और उसके बाद आपका जो भी डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल है वो आपके लेटर्स पे आ जाएगा। चेंजिंग द फॉन्ट कलर। Color can be used to emphasize text in a presentation. The default font color used in a presentation is determined by the theme that is applied to the presentation. आपका जो फॉन्ट कलर होता है वो यूजुअली आपके फॉन्ट्स में तब लगाया जाता है जब आपकी प्रेजेंटेशन को आपको और भी ज्यादा कलरफुल, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और एनहांस करना होता है बेसिकली। टू चेंज द फॉन्ट कलर, स्टेप 1, select the text that you want to format. Step 2, on the home tab in the font group, click the font color button to apply the color on the button. अब आपको अगर किसी भी आपके फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद जो आपका फॉन्ट ग्रुप है उसमें आपको फॉन्ट कलर बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने अलग अलग खूबसूरत से कलर आ जाएंगे। जो भी आपका फेवरेट कलर है आपकी प्रेजेंटेशन की नेसेसिटी से मीट करते हुए आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपके फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। Formatting paragraphs. You can change the appearance of an entire paragraph by applying paragraph formatting. For example, you can adjust a paragraph's line spacing and horizontal alignment as well as create bulleted and numbered lists. Paragraph formatting can be applied using the commands in the paragraph group on the home tab of the ribbon. आपको जो पूरे के पूरे पैराग्राफ का जो आउटलुक है, अपीयरेंस है, उसको जब आपको चेंज करना होता है तो आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। इसमें आपकी अलग अलग पैराग्राफ के बीच की लाइन की स्पेसिंग होती है। आपके पैराग्राफ को नंबर्ड वे में, बुलेटेड फॉर्मेट में भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप कर सकते हैं। जो आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो पैराग्राफ ग्रुप होता है होम टैब में, आपके जो रिबन पे होम टैब होता है उसमें आपका एक पैराग्राफ ग्रुप होता है, तो उससे एक्सेस करते हुए आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। Changing text alignment. You can change the alignment of text in a slide using the 4 alignment commands in the paragraph group on the home tab. Name, description. Align text left button aligns text against the placeholder's left edge. Center button aligns text in the middle of the placeholder. Align text right button aligns text against the placeholder's right edge. Justify button aligns text against both the left and right edges, adding space between words to fill the line. फिर आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, कितनी स्पेसिंग चाहिए, ये आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है। तो इसके आपके अलग अलग बटन्स होते हैं, जैसे कि आपका अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट बटन है, या आपके प्लेस होल्डर्स के लेफ्ट एज पे आपके सारे के सारे टेक्स्ट को अलाइन कर देगा, ले आएगा। सेंटर बटन होता है, सेंटर बटन जो होता है आपके बिल्कुल जो मिडल पार्ट होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट में बिल्कुल इक्वल मार्जिन आपके छूटे होते हैं, तो आपका ये बटन वहां यूज होता है। अलाइन टेक्स्ट राइट बटन, राइट बटन बिल्कुल जैसे लेफ्ट वाला लेफ्ट पे ले आता है, राइट बटन आपके राइट एज पे ले आएगा। जस्टिफाई बटन, जस्टिफाई बटन जो होता है आपके जो दोनों साइड पे मार्जिन होते हैं, अप डाउन मार्जिन होते हैं, इक्वल जगह छोड़ता है और बिल्कुल आपका जस्टिफाई, जहां पर आपका पैराग्राफ बिल्कुल बेस्ट सूटेड लगता है वहां पर ले आता है। टू चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट, स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू अलाइन। स्टेप 2, ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द डिजायर्ड अलाइनमेंट बटन। अब अगर आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको भी आपको अलाइन करना है। अलाइन करने के बाद आपके होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आप जाएंगे और वहां पर आपको डिजायर्ड अलाइनमेंट बटन, जो अभी हमने 4 पढ़े हैं, उसमें से जैसी अलाइनमेंट चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। Creating bulleted and numbered lists. Slides often contain text in bulleted lists. PowerPoint automatically creates the bullets as you type the list. You can also add and remove bullets manually. When you want to present a sequence of information or list items by order of importance, you can also create a numbered list. फिर आपका आता है आपके पैराग्राफ्स में
बुलेटेड फॉर्मेट में या फिर नंबर्ड फॉर्मेट में आप लिस्ट को दिखा सकते हैं, जहां पे आपको अलग अलग पॉइंट्स दिखाने होते हैं या फिर अलग अलग आपकी नंबर वाइज लिस्ट होती है, वहां पर आप ये बेसिकली यूज करते हैं ताकि एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाए, शॉर्ट में सबको पता चल जाए कि आपकी प्रेजेंटेशन में एक्चुअली में कहां पर आप क्या बताना चाह रहे हैं। टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, Step 1, select the line of text that you want to add bullets to. Step 2, on the home tab in the paragraph group, click the bullets button. अब अगर आपको bulleted list चाहिए, सबसे पहले तो आप उस लाइन ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके पहले आपको बुलेट पॉइंट्स चाहिए। उसके बाद होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे जाने के बाद पैराग्राफ ग्रुप आएगा, पैराग्राफ ग्रुप में आपको क्लिक करना है बुलेटेड बटन्स पे, आपके जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके पहले आपके बुलेट्स आ जाएंगे। Know it. You can change the bullet symbol by clicking the bullets arrow and making a selection from the bullets gallery. तो अगर आपको बुलेट सिंबल चाहिए, सिंपली आप बुलेट्स एरो पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पर जाके आप बुलेट्स गैलरी में से सिलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप का बुलेट पॉइंट आपको चाहिए। To create a numbered list, Step 1, select the lines of text that you want to add numbers to. Step 2, on the home tab in the paragraph group, click the numbering button. अब अगर आपको बुलेट की जगह नंबरिंग पॉइंट चाहिए, सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे जाने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और पैराग्राफ ग्रुप में जाने के बाद आप नंबरिंग बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट से पहले नंबरिंग आ जाएगी। Inserting images. Images can enhance a PowerPoint presentation. They can be used to depict an idea that may be difficult to describe or to make the presentation more visually appealing to your intended audience. Images that can be used in a presentation include clip art and pictures. Once you insert an image into a presentation, you can move it, resize it, crop or cut away portions of the image or change its colors. तो आपको अगर अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, उसको आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको बताना है, लेट्स सपोज आप किसी फ्लावर के बारे में बता रहे हैं तो फ्लावर की आप फोटो डाल सकते हैं। बहुत सारी फ्लावर्स की फोटो भी एक स्लाइड में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसकी जो साइज़ है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इससे आपका जो प्रेजेंटेशन होता है विजुअली बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगता है। टू इंसर्ट अ पिक्चर, स्टेप 1, डिस्प्ले द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू प्लेस द पिक्चर। Step 2, on the insert tab in the images group, click the picture button or click the insert picture from file button in the content placeholder. The insert picture dialog box opens. Step 3, locate and select the picture that you want to insert. Step 4, click the insert button. अब अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन में कोई पिक्चर को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको अपनी स्लाइड वो ओपन करनी है, डिस्प्ले आपको वो स्लाइड करनी है जहां पर आपको आपकी पिक्चर चाहिए। जैसे ही आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब में आपका इमेजेस ग्रुप होता है, उसमें आपको पिक्चर बटन पे क्लिक कर देना है, या फिर इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल बटन होता है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इसके बाद आपको लोकेट करना है कहाँ पर आपकी इमेज है, उस लोकेशन पे जाना है, सिलेक्ट करना है जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है और फाइनल में आपको इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। आपकी वो पिक्चर आपकी डिजायर्ड स्लाइड पे आ जाएगी। Viewing a presentation in different ways. PowerPoint 2010 has 4 primary views to help you create, organize and display presentations. Normal is the default view. तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग विजुअल्स के साथ दिखा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू ऑन रहता है, लेकिन उसको आप चेंज कर सकते हैं। Name, description, normal button. This views includes a slide pane where you can work on the content of an individual's slide, a notes pane where you can enter development and delivery notes, and an overview pane where you can move to a specific slide using the slides tab or work with the presentation outline using the outline tab. Slide sorter button. In this view, the slides or the presentation are displayed as thumbnails so that you can easily rearrange, copy or delete slides. You can also apply transitions from one slide to another as well as specify how long each slide should remain on the screen.
Reading view button. In this view, which is ideal for previewing the presentation, each slide appears in a window with simple controls. You can click buttons on the navigation bar to move through or jump to specific slides. Slideshow button. This view is used to deliver the presentation to the viewers. In this view, each slide fills the entire screen. तो आपके बेसिकली यहाँ पे 4 तरीके के अलग अलग बटन्स होते हैं, उनके अलग अलग डिस्क्रिप्शन होते हैं। पहला है आपका नॉर्मल बटन। नॉर्मल बटन जो होता है वो आपके सिंपल स्लाइड पेन का आपको एक्सेस देता है, जहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो नोट्स होते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग टाइप की एंटर डेवलपमेंट करते हैं, डिलीवरी नोट्स बनाते हैं, आपके पेन का ओवरव्यू होता है, जहाँ पे आपकी स्पेसिफिक स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड का टैब होता है, क्या काम आपने किया है वो आपका नॉर्मल बटन पे होता है। देन कम्स योर स्लाइड सॉर्टर बटन। स्लाइड सॉर्टर बटन जो होता है आपकी स्लाइड का थंबनेल आपको दिखा देता है, ताकि आपको अगर कोई रीसाइज करना है, साइज में आपको कोई इशू आ गया है तो आप वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आप यहाँ पे करते हैं। और जैसे ही वन स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आपको ट्रांजिशन करना होता है, तो ट्रांजिशन करते हुए आपको किस तरीके के इफेक्ट्स चाहिए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रीडिंग व्यू बटन। रीडिंग व्यू बटन जो होता है बेसिकली आपको एक प्रीव्यू दे देता है आपके विंडो पे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड है वो किस तरीके की दिखेगी, और आपके नेविगेशन बार पे आप देख सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन का कौन सा स्लाइड आपका चल रहा है। देन कम्स स्लाइड शो बटन। स्लाइड शो बटन जो होता है आपकी प्रेजेंटेशन की बेसिकली डिलीवरी करवाता है। आप सिंपली अगर स्लाइड शो बटन को ऑन कर देंगे तो एक पैटर्न में आपका, जब तक आप ESC नहीं दबाते हैं तब तक आपकी प्रेजेंटेशन नॉर्मल स्मूथ मैनर में चलती रहेगी। Running a presentation in the slideshow view. The slideshow view is used to deliver the presentation to viewers. This view shows your slides in full screen mode. To run presentation, step 1, select the first slide. Step 2, click the slideshow button on the view shortcuts toolbar. The slideshow displays starting with the currently selected slide. जो आपका स्लाइड शो होता है बेसिकली आपके व्यूअर्स तक आपकी प्रेजेंटेशन को ये डिलीवर करता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्लाइड शो बटन पे क्लिक करना है, जो कि आपके व्यू शॉर्टकट्स टूल बार पे प्रेजेंट होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपका स्लाइड शो आपकी करंट सिलेक्टेड स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। टू रिवाइज, टू स्टार्ट PowerPoint, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint 2010. The ribbon is located below the title bar. By default, a slide added after the title slide layout has the title and content layout. You can move, resize and rotate placeholders to suit your needs. PowerPoint 2010 includes a number of features that can be used to easily format a presentation. Slides often contain text in bulleted lists. Image can enhance a PowerPoint presentation. PowerPoint 2010 has 4 primary views to help you create, ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले प्रेजेंटेशन। तो आपका जो पावर पॉइंट होता है बेसिकली आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रेजेंटेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। आपकी प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड्स को भी डाल सकते हैं, ट्रांजिशनल इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, स्लाइड शो भी कर सकते हैं, इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक, पूरे के पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, कलर, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है।